and output port with 2 dash having output port voltage V2 and current as I2. But the parameters are now ABCD parameters. So what ABCD parameter represents are these are also called as transmission parameter. Transmission parameter. What is mean by transmission parameter? Transmission यानी जैसे हम लोग कहते हैं कि I have a transmission line connecting input and output. Now what is input? Input means V1 and current I1. And what is output? Output means V2 and current I2. Therefore, these parameters are referred as transmission parameter. Like a transformer. Transformer जब आप लोग define करते हो, transform the energy is the definition for transformer. फिर से एक बार repeat करता हूँ. Transformer आप जैसे define करते हो, transforms the energy. But what is that energy or power? That energy or power is the input energy to the output energy. What is input energy? Input energy or input power is nothing but the voltage and the current. And output energy is again voltage and current. So this form of parameter transmission is called as transmission parameters. Those are transmission parameters are simply represented as A, B, C, D. Therefore, the parameters are referred as ABCD parameters. Okay. So now how those transmission parameters can be written in the format? So I already said that input is V1 and I1 and output be V2 and I2. Like in impedance, V1 and V2 are represented in terms of I1 and I2. Admittance, I1 and I2 are represented in terms of V1 and V2. Okay. Can anyone tell me the representation for V1 and I1 with AB and CD? Can just anyone tell me the generalized equation for V1 and I1 in terms of V2 and I2? Anyone? Anyone? Sir, what? Just tell me the equation, generalized equation. जैसे यहाँ पर हमने जनरलाइज इक्वेशन लिखा, ये इक्वेशन है आपका इम्पीडेंस के लिए, जिसको हम कहते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर्स. ये है आपका शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स. सिमिलर वे आई जस्ट नीड द इक्वेशन फॉर ट्रांसमिशन पैरामीटर्स. V1 equals to AI1 plus BI2 and V2 equals to CI1 and CI2. नहीं, फिर से एक बार बोलो. V1 is equal to AI1. Okay, AI1. Why you are telling me I1 in this equation? What I said is, what is mean by transmission? Why these parameters are called as transmission parameters? The reason of saying is, as we have a transformer, just an example, which transfers the energy. So input energy is transferred to output energy. What are input parameters? It is V1 and I1. इसका मतलब on left hand side आपके पास क्या रहेगा? You have V1 and I1 on left hand side. और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? तो राइट हैंड साइड में रहेगा V2 and I2. And that's why we call those parameters as transmission parameters. Are you getting my point? This is just a logic which I am putting in front of you to understand what is meant by transmission parameter. Or otherwise you can refer the definition to transmission parameter. The definition of transmission parameters is that the parameters which relates input V1 and I1 with output V2 and I2. That is called as transmission parameters. Okay, Anshul, can you just repeat the equation now? V1 and I1 both are on left hand side. Now just change the terms and tell me the equation.
AI2 plus BI2. नहीं, AV2, क्योंकि आपका पोटेंशियल पहले रहेगा ना, AV2, ओके, एंड BI2, that is correct. Okay, but just check the direction, orientation of I2 here. When we transfer the energy, जैसे हम लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर, अब आपने ट्रांसफार्मर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, बराबर, जहां पर आपका प्राइमरी साइड है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कोर एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंडरी वाइंडिंग. जब आप ट्रांसफार्मर को डिफाइन करते हैं तो ट्रांसफार्मर क्या कहता है कि व्हेन इट ट्रांसफर्स द एनर्जी, इनपुट एनर्जी टू द आउटपुट एनर्जी. अब इनपुट एनर्जी क्या रहेगा, V1 इंटू I1, एंड आउटपुट एनर्जी क्या रहेगा, V2 इंटू I2, बराबर. अब इनपुट में आपने V1 दिया जिसकी वजह से I1 पास हुआ, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के बाद यहां पर आपका एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, वोल्टेज V2, और जैसे यहां पर आप लोड कनेक्ट करोगे, एक आपने लोड कनेक्ट कर दिया, तो जैसे आप लोड कनेक्ट करोगे तो लोड कनेक्ट करने की वजह से ध्यान से देखना यहां पर एक करंट पास होगा, और ये करंट जो आपका सर्कुलेट होगा लोड से, वो लोड उस करंट को कंज्यूम करेगा. तो फिर आपने यहां पर ट्रांसफार्मर को यूज क्यों किया, it is to transfer the power from one side of the machine to the other side by keeping frequency and flux constant. That maintains the EMF voltage constant. उसी तरीके से transmission parameters are the parameters which relates the input parameters V1 I1 with the output parameters V2 and I2. But the orientation of this I2 is from 2 onwards, यानी ये आपका ओरिएंटेशन है एंटी क्लॉकवाइज. Whereas in original transmission line, if the input energy is given to one side, the other side get connected, when it can get connected with the load, that consumes that power in terms of current. So the direction of both the currents are opposite, and therefore it is represented with minus sign here. So V1 is equal to AV2 minus BI2 in case of transmission parameters. In case of transmission parameters. So V1 is AV2 minus BI2. Similar way, I1 is CV2 minus DI2. This is your equation 1. This is your equation 2. इस लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं so that you will get the idea why I have done this. So what this negative sign indicates? The negative sign in this particular case indicates that the minus sign is due to the conversion chosen. Our reference direction is opposite to the normal followed direction. What I said is our reference direction is opposite to the normally followed direction. So therefore minus sign is for the currents and not for the constants B and D. That is that I2 current is in opposition to the reference current. That is our reference direction is opposite to the normally followed direction, that is I2. So over here this minus I2 is in opposition to the normally current which we represent, that is I2, and therefore here we have to represent it with the minus sign. That is originally what we have, practically what we have this orientation. That is from, with respect to the load connected, we get the direction of current is from this side to the other side through the load. Okay. Okay. Now, any question on this particular point? Any question on this particular point? Okay, there is no question from your side. So I just proceed further.
यहाँ तक यानी कैसा है कि सबसे पहले जैसे कोई नया टॉपिक आपके सामने आता है तो कहीं ना कहीं उसको क्या कहते हैं हजम करने के लिए यू नीड अ टाइम, है ना, पचायला वेळ लागतो. सो व्हाट द पर्टिकुलर टॉपिक इज सेइंग, द टॉपिक इज सेइंग इट इज अ ट्रांसमिशन पैरामीटर्स. तो पैरामीटर्स ऐसे जो उस ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करेंगे, पैरामीटर्स ऐसे जो ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब वो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स क्या है, हाँ पचायला म्हणजे एब्सॉर्ब करने के लिए समय लगता है. ओके, सो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स यानी जो पैरामीटर्स उस ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करेंगे. अब ट्रांसमिट आप क्या कर रहे हो, तो इनपुट में आप एक पोटेंशियल दोगे जिसकी वजह से एक्साइटेशन रहेगा. अब पोटेंशियल क्या है V1, करंट क्या है I1. अब वही पैरामीटर्स आप उस नेटवर्क के थ्रू सेकंड साइड, सेकंड पोर्ट पर भेज रहे हो. जहां पर सपोज ट्रांसफार्मर की बात करें तो लोड कनेक्ट होगा. अब लोड अगर कनेक्ट होगा तो वहां पर पोटेंशियल आएगा, लोड की वजह से करंट पास होगा. तो जो आउटपुट पैरामीटर्स है वो क्या किस टर्म्स में रहेंगे, इट इज इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I2. इनपुट पैरामीटर्स क्या रहेंगे, V1 एंड I1. सो व्हेन वी हैव टू relate input parameters V1 and I1 with the output parameters V2 and I2, आपके पास you have a representation with the help of parameters. So what are those parameters are called as A, B, C, D parameters. That's all. So what is A, B, C, D parameters and how it is represented? It is represented as V1 आपका input voltage है, I1 आपका input current है. तो V1 is equal to A V2 minus B I2. I1 क्या होगा, CV2 minus DI2. अब ये माइनस साइन B या D को नहीं दिया हुआ है, whereas that minus sign is given to the current I2 because that current which is represented in transmission is showing that the input energy is transferred to output, and as it is transferred to output with respect to the load, the current starts passing through that load, and therefore that current orientation is opposite to the current which we generally consider, which we normally consider, and therefore that parameter is represented with negative sign. हाँ बोला. सर ये इक्वेशंस कैसे आए एक बार बताइए. ये इक्वेशन अभी जैसे मैंने आपको कहा, जैसे हम लोग सपोज इंपिडेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंपिडेंस को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, Z इज इक्वल टू V अपॉन I, बराबर. इसका मतलब V इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू Z. V इज इक्वल टू I इंटू Z. अब एक आपका V1 होगा और एक V2 होगा. सो V1 और V2 दोनों टर्म्स आपके कहां पर रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में. ये बात समझा आपको? फिर से एक बार रिपीट करता हूं. V1 Z क्या होता है, Z इज इक्वल टू V अपॉन I. Z इज इक्वल टू V अपॉन I. अब V के टर्म्स को आपको अगर लिखना है तो V क्या रहेगा आपका, V इज इक्वल टू I इंटू Z. I इंटू Z. अब इसका मतलब क्या हुआ कि V इज इक्वल टू I इंटू Z, यानी Z इंटू I. अब ये जो टर्म्स है V कौन कितनी जगह पर है, दो जगह पर. एक है आपका V1 और दूसरा है V2. लेकिन V1 और V2 की वजह से दो करंट्स डेवलप होंगे, इस वजह से आपको दो बार यहां पर करंट्स लिखने होंगे. तो Z11 I1 प्लस Z12 I2, ये इक्वेशन ऐसा हुआ. उसी तरीके से V2 भी रहेगा, तो Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये हुआ, बराबर. या फिर इसके लिए रेफरेंस हम लोगों ने जो मेश और नोडल में नेटवर्क सॉल्व किए थे उनको आप रेफर कर सकते हो, जहां पर आपने देखा है द इक्वेशन फॉर्मेट, मैट्रिक्स फॉर्मेट. तो ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर में आपके पास इनपुट एनर्जी क्या है, V1, और V1 की वजह से I1 है. अब I1 अगर रहेगा तो ये मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा तो यहां पर EMF इंड्यूस होते हुए आपको वोल्टेज मिलेगा. लोड अगर कनेक्ट हो रहा है तो लोड की वजह से I2 करंट पास होगा. तो इनपुट पैरामीटर्स आपके कौन से हुए, V1, और फिर वो ट्रांसमिट हो रहा है V2 और I2 के टर्म्स में. तो इन इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो उस पैरामीटर को हम कहते हैं ABCD पैरामीटर्स, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स. अब जैसे हमने यहाँ पर V1 और V2 लिखा लेफ्ट साइड में, क्योंकि आपके पास V इक्वल टू ZI था. अब यहाँ पर आपके पास क्या है, एक है आपके पास V और दूसरा है I, क्योंकि ये आपके इनपुट पैरामीटर्स है. और आउटपुट पैरामीटर्स क्या है आपके पास, V और I, लेकिन यहाँ पर इनपुट है V1 I1, आउटपुट पैरामीटर्स है V2 और I2. अब आप V1 और I1 पैरामीटर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ABCD. सो जैसे A B C D, इट इज जस्ट लाइक योर
इम्पीडेंस Z11, Z12, Z21, Z22 या फिर एडमिटेंस Y11, Y12, Y21, Y22। अब V1, I1 इनपुट पैरामीटर्स, V2, I2 आउटपुट पैरामीटर्स एंड द नेटवर्क एज ABCD पैरामीटर्स। तो आपका इक्वेशन क्या होगा फिर? V1 इज इक्वल टू A इंटू V2 बराबर, लेकिन यहां पर आपका जो करंट है दैट करंट इज इन अपोजिशन टू द नॉर्मल करंट, देयरफॉर इट अटेन्स नेगेटिव साइन, तो इसलिए क्या होगा आपका B इंटू I2। उसी तरीके से I1 के लिए इक्वेशन लिखोगे, सो I1 इज इक्वल टू C इंटू V2 माइनस D इंटू I2, but this minus sign is not given to D whereas it is given to I2. So these are equations 1 and equations 2. सर Z11 और Z12 कहाँ पे है? Z11 जैसे हम लोग एक नेटवर्क सॉल्व करते हैं, सपोज जस्ट आई टेक दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, ये है आपका 2 पोर्ट नेटवर्क, यहाँ पे आपने दिया V1, यहाँ पर आपने दिया V2, ये है सपोज RA, ये है RB, ये है RC। अब जब मैं कहूं कि यू हैव टू अप्लाई KVL टू दिस पर्टिकुलर सर्किट, तो आप KVL अप्लाई करते हुए क्या लिखोगे इक्वेशन? इफ आई जस्ट फॉर्म इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन, इफ आई जस्ट फॉर्म इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन, तो इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन क्या होगा मेरे पास? V1 इज इक्वल टू बराबर RA प्लस RC इंटू I1। I1 क्या रहेगा? ये लूप का करंट। I2 क्या रहेगा? इस लूप का करंट, माइनस बराबर है माइनस RC इंटू I2, ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 1। अब यहां पर मैं अगर देखूं तो मेरे पास V1 है और Z11 I1 प्लस Z12 I2। अब Z11 का वैल्यू क्या है मेरे पास? RA प्लस RC, और Z12 का वैल्यू मेरे पास क्या है? माइनस RC। उसी तरह जब आप लूप 2 को लगाओगे तो लूप 2 का इक्वेशन जब इंस्पेक्शन से फॉर्म करोगे तो क्या फॉर्मेशन होगा आपका? माइनस RC इंटू I1 प्लस RB प्लस RC इंटू I2। अब यहां पर फिर से आप रेफर करोगे, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, तो आपके पास इंस्पेक्शन कंपैरिजन से क्या मिलेगा? Z21 इज इक्वल टू माइनस RC एंड Z22 इज इक्वल टू RB प्लस RC। इन शॉर्ट व्हाट यू डिड इज यू हैव रिप्रेजेंटेड द पैरामीटर्स। जैसे ये पैरामीटर है कांस्टेंट वैल्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड विद द कांस्टेंट Z21। अब Z21 क्या होगा? सिर्फ अगर Z21 की बात करें तो इंपीडेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, लेकिन कौन सा? तो Z2 पहले है तो इसलिए V2 अपॉन I1। अगर मैं लिखूं Z12 तो इंपीडेंस इज अगेन वोल्टेज अपॉन करंट, लेकिन 1 पहले तो 1 यहां पर पहले, 2 बाद में। Z11 अब फिर से वोल्टेज अपॉन करंट, 1 पहले है 1 अपॉन 1। तो ये है मेरे इंपीडेंस पैरामीटर। जैसे कोई भी नेटवर्क को आप सॉल्व करो तो आप लोग उस सर्किट में आप KCL लगा सकते हो। जैसे यहां पर मैंने KVL अप्लाई किया, आप KVL की जगह आप KCL अप्लाई करोगे तो KCL किस टर्म्स में मिलेगा आपको? करंट इज इक्वल टू Y इंटू V, बराबर है ना? करंट इज इक्वल टू Y इंटू V। वाई क्यों? बिकॉज V अपॉन Z, 1 अपॉन Z क्या होगा? Y, सो Y इंटू V। लेकिन करंट और वोल्टेज आपके यहां पर है। अब मुझे इनपुट पैरामीटर वोल्टेज और करंट को रिलेट करना है। जैसे यहां पर मैंने एक इनपुट वोल्टेज दिया, यहां से एक इनपुट करंट जा रहा है, उसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है और यहां पर मुझे आउटपुट करंट मिल रहा है। तो ये रिप्रेजेंट मैं कैसे करूंगा? तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन दे दिया जिसको हम कहते हैं ABCD, ऐसा। यहां तक क्लियर है क्या? नहीं सर, यहाँ पे तो रजिस्टर्स है पर ट्रांसफॉर्मर में तो नहीं है, सिर्फ वहाँ पे Z1, Z12, Z11 क्या है? ट्रांसफार्मर में आपके फिर से 2 पैरामीटर्स रहेंगे, रेजिस्टेंस रहेगा, रिएक्टेंस रहेगा। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस रहेगा। उसके बाद उसमें आपके ऑन लोड पैरामीटर्स निकलेंगे और ऑफ लोड पैरामीटर्स निकलेंगे।
तो इंपीडेंस का इक्वेशन आपका वही रहेगा, वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज अपॉन करंट करने के बाद जो इक्विवेलेंट सर्किट से आप लोग फाइंड करोगे वो रहेंगे आपके इंपीडेंसेस। तो सर हमने ये एबीसीडी जनरलाइज कर दिए ना, हाँ सभी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को कंसीडर करके। हाँ, यानी वो इनपुट और आउटपुट को रिलेट करने के लिए आपके पास वो एबीसीडी पैरामीटर्स हो गए। ठीक है। हाँ, okay, so all of you are clear up to this point? Okay, now all of you write down next heading as condition for reciprocity and symmetry. Condition for reciprocity and symmetry. यहां तो कोई दिक्कत है क्या, देखो तो। एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, एक और पॉइंट, शेयरिंग ऑफ दिस पीपीटी इज नॉट पॉसिबल ऑन गूगल क्लासरूम। द रीजन इज द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर पीपीटी इज increased. Like I am now, right now I am on 26th or 27th of the slides. So therefore, ये sharing is like quite difficult, unnecessary. It consumes the data, and therefore it's better to write the parameter, write the slides here, or if you want you can take a snapshot. Okay, so let us see the condition for कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री। ओके, चलो हम लोगों ने रेसिप्रोसिटी की कंडीशन कैसे देखी थी, याद है किसी को? एडमिटेंस के लिए हम लोगों ने देखी थी रेसिप्रोसिटी कंडीशन। कैसे शुरुआत किया था? कैन एनीवन जस्ट टेल मी? सपोज आपके पास ये एबीसीडी पैरामीटर्स है। एबीसीडी पैरामीटर्स यानी सिर्फ जो पैरामीटर्स इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उनके रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एबीसीडी पैरामीटर। तो बहुत कुछ अलग नहीं किया हुआ है यहां पर, सिर्फ इतना है कि ये इट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी, विच रिलेट्स इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर। तो आपके पास ये एबीसीडी पैरामीटर एक स्ट्रक्चर है। सो हाउ वी कैन डिराइव द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी? कैन एनीवन जस्ट टेल मी? सर प्रीवियस इसमें हमने V2 डैश को शॉर्ट किया था, हाँ, और V2 0 करके सॉल्व किया था। ओके, यानी आपने सप्लाई एक साइड दिया था और उसके बाद आपने शॉर्ट दूसरे साइड को किया था, शॉर्ट सर्किट, राइट? अब यहां पर भी हम लोग वही चीज करेंगे कि इस चीज को शॉर्ट करते हैं। ओके, अब जैसे आप आउटपुट पोर्ट शॉर्ट करोगे तो यहां से जो करंट पास हो रहा है, अब ऑलरेडी आपका नेगेटिव साइन लिया हुआ है, राइट? अब यहां से करंट पास हो रहा है आपका I2। सो नाउ व्हाट आई से इज, आपके इक्वेशंस जो है V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2, बराबर है? ये आपका एक इक्वेशन है। ओके, एंड आई जस्ट से दिस इज इक्वेशन 1, एंड अनदर इक्वेशन इज I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? आंसर करंट शुड बी इक्वल टू आउटपुट करंट। पार्डन? शॉर्ट सर्किट करंट शुड बी सेम। शॉर्ट सर्किट करंट शुड बी सेम, है ना? यहाँ वहां पर आपका I1 डैश इज इक्वल टू I2 डैश, ये हम लोगों ने लिखा था, बराबर? अब यहाँ पर भी आपकी वही डेरिवेशन आएगी ना, यहाँ पर भी आपकी वही कंडीशन आएगी। ओके, अब जैसे यहाँ पर आपने कहा V2 इज इक्वल, आपने इसको शॉर्ट किया, जैसे इसको आप शॉर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको V2 इक्वल टू कितना हो रहा है? 0। ओके, ऑल ऑफ यू आर एग्रीड? जैसे आप इसको शॉर्ट करोगे, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, जैसे आप इस आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करोगे तो दैट V2 बिकम्स इक्वल टू 0। ओके, अब V2 इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन 1 आपका क्या होगा? इक्वेशन 1
V2 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 आपका क्या होगा? सर V1 इज इक्वल टू माइनस BI2. ओके, और B इक्वल टू क्या होगा? यस, माइनस V1 अपॉन I2. हाँ, अदरवाइज आई जस्ट राइट इट V1 अपॉन माइनस I2. V1 upon minus I2. So I just write this equation, right? Okay. Now another point is, अब अगर V1 upon minus I2 आपने B का वैल्यू निकाल लिया इक्वेशन 1 से. Now I put a short circuit on primary side, यानी इनपुट साइड, नॉट प्राइमरी. अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो इस शॉर्ट सर्किट की वजह से, इस शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होगा? आपने कौन से पोर्ट को शॉर्ट किया? आपने 2 डैश को शॉर्ट किया. यू पुट अ 2 डैश शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से V2 0 होगा. अब आपने 1 डैश पे शॉर्ट किया हुआ, 1 डैश को शॉर्ट किया हुआ, तो कौन, इस शॉर्ट सर्किट की वजह से V1 के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? जैसे आप इस इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करोगे तो उसके बाद V1 के साथ क्या होगा? सर वो भी 0 हो जाएगा. ओके, सो V1 इज इक्वल टू 0. अगर V1 0 हो रहा है तो फिर से इक्वेशन 1 आपका क्या चेंज होगा? इक्वेशन 1 ये आपका 0 हो चुका है, बराबर है? ये 0 हो चुका है. अब अगर ये 0 हो चुका है तो आप I2 का इक्वेशन क्या लिखोगे फिर? A upon B. A upon B, okay. Equal to I2 upon V2. Equal to I2 upon V2. नहीं, V2 upon I2. अच्छा, V2 upon I2, ठीक है. So I just write I2 is equal to A V2 upon B. यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो फिर से देखते हैं. आपने V1 को 0 किया, V1 जैसे 0 हो रहा है तो B I2 आप लेफ्ट ले जा रहे हो. So you can write the equation for I2. I2 is equal to AV2 upon B. AV2 upon B. Is it okay? Is it okay? Okay, चलो. कोई दिक्कत? नहीं. चलो. Anyone, any student, any problem? Any question till this point? Okay, Janvi, what we did, यहां तक हमने क्या किया हुआ है? जानवी, ओके, खुशहाल, मिथिलेश, attend your roll call. सिर्फ आप लोग मुझे अपना रोल नंबर बताते जाए. आतिश, am I audible? No, you don't put into the chat box. Chat box में आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मुझे आपका रोल नंबर ओरली बताना है. चैट बॉक्स में आपको रोल नंबर नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ आपका आवाज सुनना है. आतिश, जस्ट टेल मी योर रोल नंबर.
आतिश, ओके नेक्स्ट आभास, टेल मी Yes, योर रोल sir. नंबर. Sir, 21. Okay. Then अभिलाषा. 1. आतिश का कितना है मैं भूल गया. 20. 20. ओके. आदित्य बंदगी. सर 23. ओके. आदित्य फुलजेले. 24. ओके. देन ऐश्वर्या. अनुष्का. ओके. आर्या. 5. अंशुल. 25. ओके. आयुषी. 6. भूषण. 28. चेतन. चेतन. 29 सर. ओके. धारक. धारक. ओके. दीक्षांत. सर 31. ओके. दीपांशु. सर 32. ओके. गौरव नागोसे. 33. गौरव शेंडे. 34. ओके. गौरव शिंदे सॉरी. ओके. देन हर्ष तांबे. हर्षल आसुतकर. सर 36. हर्षल आसुतकर तू बाहेर आहेस का. हर्षल आसुतकर. ओके. हर्ष तांबे. येस सर. बाहेर आहेस का तू. नाही सर. मग मार्केट मधला आवाज काय होऊन राहिला एवढा. ओके. हर्ष तांबे. बरं ठीक आहे. रोल नंबर किती आहे तुझा. 35. ओके. हिमांशु खडसे. ओके. हिमांशु कोठेकर. सर रोल नंबर बताइए आपका. 38. ठीक है. मिथिलेश. 42 सर 42. ओके. नम्रता. 9 sir. ओके. देन प्रज्वल. 44. प्रांजल. 45 सर. ओके. देन साहिल. 47 सर. ओके. प्रथमेश. 46. ओके. साक्षी. 12. ओके. समीक्षा. 13 sir. ओके. देन शर्वरी. 14 sir. श्रेया. 15 sir. श्वेतांशु. ओके. स्मित. 51 सर. ओके. स्वेजल. 17 sir. देन उत्कर्ष. 57 सर. वेद प्रकाश. वेद प्रकाश. ओके. यश सत्ता भैया. सर प्रेजेंट सर 56. ओके. ठीक है. फाइन फ्रेंड्स, यू कैन लीव नाउ. थैंक यू सो मच. हेलो सर. हेलो सर. अंजल. यस सर. प्लीज शेयर दिस पीपीटी सर. अरे मैंने अभी कहा बेटा कि वो पीपीटी शेयर करना डिफिकल्ट है क्योंकि इसके ऊपर नहीं जाएगा सर गूगल आधा करके भेजो सर. पहले न्यूमेरिकल फिर एबीसीडी ट्रांसक्रिप्शन. नहीं रे बड़ा, वो आधा करना कोई पॉसिबल नहीं है. सर ये अपलोड हो जाएगा क्या यूट्यूब पर. नहीं, यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा. सर इज इट पॉसिबल आप पीडीएफ शेयर करो सीआर में, तो एसआरसी मेंबर को वो सर्कुलेट कर देगा हमको. पीडीएफ अगर मैं शेयर करूं तो प्रॉब्लम ये है कि जो लिखा हुआ पेन टैब से है वो दिखता नहीं है. सर वीडियो कहाँ पर मिलेगी ये.
वीडियो मुझे गूगल क्लासरूम पे अगर आ जाती है तो मैं आप लोगों को अपना गूगल ड्राइव पे आ जाती है तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है।